Good morning, students. In this lecture, we are starting a new chapter of microeconomics, chapter number 9, revenue. What is revenue? First, understand an example. After this, you can easily understand the concept of revenue. For example, you are running an ice cream factory and you produce some ice cream. Then, by selling 5,000 ice cream at 10 rupee per ice cream, you receive money 50,000 rupees. So, this money receipt or this selling receipt, that is revenue for you in economics term. So what is revenue? Revenue is the sale receipt or money receipt for a firm by selling a commodity. You can write an example of ice cream slabs by this. Now revenue and profit. There is a lot of difference between revenue and profit. Profit is the part of revenue, but revenue is not a part of profit. Revenue is sale receipt or money receipt. So when a person sells something, then he sells that product by earning profit. So revenue is equal to cost price plus profit. But so profit is the part of revenue. Now the concept of total revenue, average revenue and marginal revenue. What is total revenue? Revenue is the sale receipt or money receipt. So what is total revenue? Total revenue is the total sale receipt or total money receipt by selling all unit of a commodity. कि जितने भी यूनिट प्रोड्यूस कर रही है फैक्ट्री या कंपनी, उन सभी यूनिट्स को सेल करके जो भी आपकी मनी रिसीट हुई है फर्म को, दैट इज टोटल रेवेन्यू. Total revenue is the money receipt or the sale receipt by selling all unit of commodity. All unit कि जितने भी यूनिट प्रोड्यूस किए हैं उन सभी यूनिट्स को सेल करके जितना भी अमाउंट अर्न किया है, दैट इज टोटल रेवेन्यू. फॉर एग्जाम्पल, बाय सेलिंग 100 यूनिट ऑफ आइसक्रीम, 100 यूनिट्स को सेल किया था 10 रुपी पर यूनिट में, तो कितना अर्न किया? 1000 रुपी टोटल अर्न किया, तो 1000 रुपी टोटल अर्न किया है, दैट इज टोटल रेवेन्यू. तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है? आउटपुट मीन्स क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस पर यूनिट. या फिर हम ये भी कह सकते हैं टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी, दैट इज आउटपुट मल्टीप्लाई एवरेज रेवेन्यू, दैट इज टोटल रेवेन्यू. नेक्स्ट, मार्जिनल रेवेन्यू. व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू? नेक्स्ट, मार्जिनल रेवेन्यू. व्हाट इज मार्जिनल? मार्जिनल मीन्स change. So marginal revenue refers to the change in total output when one more unit or an additional unit of a commodity is sold. जब टोटल रेवेन्यू का कुछ एडिशनल, कि पहले हमने कितना सेल किया था? 100 यूनिट सेल किए थे, कि 100 यूनिट से कुछ एडिशनल में सेल किया जाता है, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू. तो फॉर एग्जाम्पल, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू ऑफ एन यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ एन माइनस 1 यूनिट. पहले हमने टोटल रेवेन्यू 100 यूनिट्स का कितना आया था हमारे पास? 1000 रुपीज. फॉर एग्जाम्पल, अब फर्म ने 110 यूनिट सेल किया है, तो 110 यूनिट्स का 10 रुपीज के अकॉर्डिंग कितना रेवेन्यू हो जाएगा? 1100 रेवेन्यू हो जाएगा. नाउ अब चेंज कितना आया है? पहले 100 यूनिट थे, अब 110 यूनिट है, तो चेंज कितना आया है? 10 यूनिट का. तो मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ 10 यूनिट इज इक्वल टू 1100 minus 1000, that is equal to 100 rupees. That is marginal revenue of 10 unit. Now average revenue. What is average revenue? Average means by per unit. So what is average revenue? Average revenue refers to the revenue or sale receipt by selling 1 unit of commodity. कि जो भी 1 यूनिट पर यूनिट को सेल करके अर्न किया है फैक्ट्री ने, कंपनी ने या फर्म ने, that is average revenue. Average revenue is equal to total revenue by में Q, that is Q stand for output या quantity. Total revenue कितना था हमारा? 1000 था टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू 1000 किससे आया था हमारा? 100 यूनिट्स को सेल करने से आया था, तो 1000 बाय में 100, that is equal to 10 रुपी. तो एवरेज रेवेन्यू कितना आ गया? 10 रुपी. In short, average revenue refers to the मनी रिसीट और दी सेल रिसीट बाय सेलिंग पर यूनिट ऑफ आउटपुट, कि एक यूनिट को सेल करने से कितना रेवेन्यू आ रहा है, दैट इज एवरेज रेवेन्यू. नाउ रिलेशन बिटवीन total revenue, marginal revenue and average revenue. What is the relation between total revenue, marginal revenue and average revenue?
सो इसके लिए हमारी फर्स्ट कंडीशन है व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज कांस्टेंट, कि जब हमारा एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट हो। आपने देखा होगा कि आप कितने भी यूनिट्स, कई बार होता है कि हम किसी शॉप से यूनिट्स लेते हैं, कोई तो हमें कम प्राइस में सेल करता है, लेकिन जैसे ही हम ज़्यादा यूनिट्स परचेज करते हैं तो वो शॉपकीपर हमें कम प्राइस में दे देता है। लेकिन कई बार कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, हम कितने भी यूनिट्स ले हमारा पर यूनिट प्राइस सेम रहता है। फॉर एग्जांपल मैगी, जब हम एक मैगी का पैकेट परचेज करते हैं तो 12 रुपीज़ का देता है वो शॉपकीपर हमें, लेकिन चाहे हम फिर वो शॉपकीपर कहते हैं कि आप 10 यूनिट लो, चाहे 100 यूनिट लो, चाहे 3 यूनिट लो, चाहे 5 लो, कि पर यूनिट प्राइस क्या रहेगा, 12 ही रहेगा। तो जब 1 क्वांटिटी थी तो एवरेज रेवेन्यू क्या था मैगी का, 12, देन 2 पे भी 12, 3 पे भी 12 एंड 5 यूनिट पे भी 12। मीन्स चाहे आउटपुट इंक्रीज हो रहे हैं, हमारा एवरेज रेवेन्यू क्या रह रहा है, कांस्टेंट। कि एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट है तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा, पर यूनिट के अकॉर्डिंग होएगा। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, देन 36, देन 48, देन 60। और इसके अकॉर्डिंग हमारा मार्जिनल रेवेन्यू क्या रहेगा, टोटल रेवेन्यू में चेंज। 12 माइनस 0, ऊपर तो कुछ नहीं है, देन 12, 24 माइनस 12, 12, 36 माइनस 24, 12, 48 माइनस 36, 12 एंड हियर इज ऑल्सो 12। सो हमने क्या देखा कि जब हमारी ये कंडीशन थी व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज कांस्टेंट, कि जब एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट है तो उस केस में हमारे पास क्या, हमने क्या देखा कि एवरेज रेवेन्यू क्या था 12, तो उस केस में मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या आया, 12 आया। और लेकिन टोटल रेवेन्यू क्या आया, टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, कि टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है कांस्टेंट रेट से। तो हमारे क्या पॉइंट्स बने, व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज कांस्टेंट देन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग बट एट अ कांस्टेंट रेट। तो यहाँ पे हमारी डायग्राम्स क्या बनेंगे, व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज कांस्टेंट, हियर एट एक्स एक्सिस यू विल टेक आउटपुट एंड एट वाई एक्सिस एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, कांस्टेंट है, दैट इज एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। और इस केस में टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दैट इज रिलेशन बिटवीन टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू व्हेन AR इज कांस्टेंट। एंड सेकंड केस इज व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज नॉट कांस्टेंट। समटाइम इट्स हैपन कि एक शॉपकीपर के पास कोई कस्टमर जाते हैं तो वो कहते हैं कि जितने ज़्यादा यूनिट्स परचेज करोगे उतना ही प्राइस कम लगेगा। आपने देखा भी होगा ऐसे ही कि जितने ज़्यादा यूनिट्स परचेज करोगे प्राइस कम लगेगा। तो जब 1 यूनिट परचेज किया तो पर यूनिट का प्राइस उसको कितना पड़ा, 10 रुपी। 2 यूनिट परचेज किए तो पर यूनिट का प्राइस कितना लगा दिया उसने कस्टमर को, 9 रुपीज़। जब 3 यूनिट परचेज किए तो 3 यूनिट में 8 रुपये पर यूनिट के अकॉर्डिंग लगा दिया गया। देन 4 यूनिट परचेज किए 7 रुपये पर यूनिट के अकॉर्डिंग लगाया गया। देन 5 यूनिट पे 6 रुपये पर यूनिट के अकॉर्डिंग लगाया गया। मीन्स जितने ज़्यादा यूनिट्स परचेज किए तो कस्टमर को प्राइस उसके अकॉर्डिंग लगाया गया, मीन्स कम कर दिया गया। तो इसके अकॉर्डिंग टोटल रेवेन्यू क्या हुआ, 10 1 ज़ा 10, 9 2 ज़ा 18, 8 3 ज़ा 24, देन 28 एंड देन 30। और इस केस में मार्जिनल रेवेन्यू क्या आया, 10, 18 माइनस 10 8, 24 माइनस 18 6, 28 माइनस 4 4 एंड देन 2। तो इस केस में हमने क्या देखा, व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज डिक्रीजिंग देन एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, कि जब हमारा एवरेज रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा था तो मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑल्सो डिक्रीजिंग बट टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। इन दिस केस it is decreasing but total revenue is increasing. Next, second point, here you can see the change 1 1 1 and here 1 कि एवरेज रेवेन्यू कितने से डिक्रीज हो रहा है, 1 से, बट मार्जिनल रेवेन्यू कितने से डिक्रीज हो रहा है, 2 2 2 एंड 2, कि एवरेज रेवेन्यू तो 1 से डिक्रीज हो रहा है बट मार्जिनल रेवेन्यू कितने से डिक्रीज हो रहा है, 2 से। मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू इज डिक्रीजिंग एट अ फास्ट रेट. That is relation between average revenue, total revenue and marginal revenue when AR is not constant. Next, third case is
कैन मार्जिनल रेवेन्यू भी नेगेटिव, कि क्या मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो सकता है? यस, मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी नेगेटिव। कई बार इसके केस मैं बताती हूँ एक, कि कई बार ऐसा होता है कि फर्म अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए या फिर कुछ प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाते हैं कि उनकी एक्सपायरी डेट नज़दीक होती है, या फिर कई बार फर्म लॉस में चल रही होती है, कि फर्म सोचती है कि कम से कम एटलीस्ट कुछ तो हमें यूनिट्स को सेल करके कुछ अर्निंग तो होगी, तो वो क्या करती है, उन यूनिट्स को कम प्राइस में सेल कर देती है कि एटलीस्ट कुछ तो अर्न होगा। तो क्या करती है, 10 रुपी प्राइस था कि कुछ यूनिट 10 में सेल कर दिए, फिर जैसे जैसे और अर्न करना चाहती है यूनिट से, उनका प्राइस और डिक्रीज कर देती है पर यूनिट प्राइस। तो 2 यूनिट सेल में 6 में कर दिए, देन 4 कर दिए उसका प्राइस, देन 2 कर दिया, मीन्स एटलीस्ट कुछ तो अर्न होगा। तो यहां से हमारा टोटल रेवेन्यू क्या आया, 10, देन 12 एंड देन 8। सो यहाँ मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, चेंज बिटवीन टोटल रेवेन्यू, 10, 12 माइनस 10 2, 12 माइनस 12 0, 8 माइनस 12 माइनस का 4। तो हमने यहाँ पे क्या कंडीशन देखी कि जब एवरेज रेवेन्यू इज डिक्रीजिंग, देन marginal revenue is also decreasing, but average revenue is decreasing at a diminished rate, but marginal revenue is decreasing at a increasing rate। कि एवरेज रेवेन्यू तो डिक्रीजिंग रेट से डिक्रीज हो रहा है, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट से डिक्रीज हो रहा है। एंड व्हेन टोटल रेवेन्यू इज कांस्टेंट, देन मार्जिनल रेवेन्यू इज कम एट 0। When total revenue is decreasing, कि जब एक ऐसा केस आया कि बहुत डिक्रीज होता गया, तो marginal revenue is come at negative। Here first, when total revenue is increasing, then marginal revenue is decreasing। When total revenue is constant, then marginal revenue is come at 0। When total revenue go decreasing, then marginal revenue come at negative। Here you can see the diagrams of total revenue, marginal revenue and average revenue when MR is negative। When total revenue is at 10, then marginal revenue and average revenue is also at 10 rupee। Then when total revenue is increasing, then MR and AR is also decreasing। When total revenue is at constant, or when the total revenue is highest या फिर constant, कि highest या फिर constant है, तो उस केस पे हमारा marginal revenue क्या हो गया, 0 हो गया, और average revenue क्या हो रहा है, decrease हो रहा है। Then when TR is decreasing, then marginal revenue is negative but AR is decreasing। These are the condition of relation between TR, MR and AR। That is the chapter 9 revenue। Thank you।